हेलो एवरीबॉडी। सो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है पेडियाट्रिक्स। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड पेडियाट्रिक्स एंड ओनली 3 सब्जेक्ट्स वर लेफ्ट, फ्रॉम which ophthalmology I am starting today. ठीक है, I am starting with the ophthalmology today and then we'll just have the two main subjects, that is surgery and the medicine will be left. So let's start with the ophthalmology. This PDF, the complete annotated PDF, I'll be keeping in our Telegram group. You can take it from there also, and while doing this attending this class, you can just see that PDF also. ठीक है, that will be very better for you. So now start anatomy, physiology and examination of the eye. So the first topic they are talking about the anatomy and physiology, of course, and the examination of the eye. So let's start with the first question. They have given an instrument and they are asking the name, or what they are asking, we'll see it. Look, so in which surgery is the following instrument used? So they are not asking the name of the instrument, rather they are asking the use of this instrument. So what is this instrument? First of all, let's see. So this is nothing but a lacrimal sac curate. This is a lacrimal sac curate, and if it is a lacrimal sac curate, it will be used for dacryocystorhinostomy. Okay, so let's see what is this dacryocystorhinostomy. So look, in dacryocystorhinostomy, an anastomosis is created between the sac and the nasal mucosa to bypass an obstruction in the nasolacrimal duct. So let's see if there is a generally a nasolacrimal duct obstruction. So for that, to open that obstruction, we'll do the dacryocystorhinostomy, and rhinostomy operation can be done by following techniques. They are conventional external approach, endonasal surgical DCR, endonasal laser DCR, and endocanaliculaar DCR. That is nothing but the dacryocystorhinostomy. So these were all regarding the dacryocystorhinostomy. Next is VY procedure is used for. Okay, so this VY procedure, look, it is most commonly and classically it is used for generally intropion, but some books also write like ectropion भी लिखा जाता है some books में. कहीं पे आंसर यहीं पे आप ectropion भी देखोगे, but मैंने बहुत खोजा and the answer came out to be intropion. This VY is used in generally साइकेट्रिशियल जनरली इंट्रोपियन. VY सर्जरी. आगे देखो, VY प्रोसीजर. अ पर्सन हैज विजन ऑफ लेस देन 3/60 बट ग्रेटर देन 1/60 इन हिज बेटर आई. व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस ही हैज? सो लुक, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस. लुक, this is nothing but the different types of blindness, that is total blindness, legal blindness, social blindness and economic blindness. So what is the definitions of total blindness? Is the definition of total blindness is there is absolute blindness, no light perception will be there. If you are talking about the legal blindness, there the vision in better eye will be less than 1/62 perception of the light. Next is social blindness, that is according to WHO and NPCBVI, that is the vision in better eye is less than 3/60 and generally to 1/60. So this is falling in this category, 3/60 to 1/60. So this is going towards your social blindness. The next is economic blindness, that is vision in better eye is less than 6/60 to 3/60, less than 6/60 to 3/60, that will be economic blindness. Next, which of the following is the gold standard for measuring intraocular pressure? Okay, so intraocular pressure, some major things that you must know about the intraocular pressure or intraocular tension. That is nothing but the normal intraocular pressure is generally between 10 to 21 mm of Hg. ठीक है, 10 to 21 mm of Hg. So this is measured by, how is this measured? So this is measured by using the Goldman applanation tonometer, or simply if you know tonometry. ठीक है, इतना याद रखो, tonometry is nothing but the measurement of, generally the process of measuring the intraocular pressure is called as tonometry, है ना, and the instrument used is tonometer. So there are different type of tonometer like pulse air tonometer, Schiot's tonometer, Goldman applanation tonometer. These are the different types. So the most commonly that are being used generally clinically, that is nothing but the Schiot's tonometer, but they are asking gold standard or the best for measurement of intraocular pressure. That will be the answer of Goldman applanation tonometer. That will be Goldman applanation tonometer because it gives the most accurate value, and this is the gold standard for intraocular pressure measurement. So here we talked about tonometer. Let's see some more. ऐसे पैचीमीटर, टोनोमीटर करके डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती है, केराटोमीटर. सो ये सब चीज़ें हम एक जगह पे कर लेते हैं. सो इट विल बी वेरी generally good for us. Look, keratometry. So this keratometry is used for the measuring the curvature of the cornea. Keratometry is used for generally measuring the
curvature of the cornea, or keratometer is used for measuring the curvature of the cornea. Specular microscope is used for corneal endothelial density measurement. Slit lamp will be used for corneal opacity. Pachymeter, so this pachymeter will be generally used for thickness of cornea. ठीक है, corneal thickness is generally measured by pachymeter. So this pachymeter will be measuring thickness of cornea. प्लेसिडोज डिस्क, ठीक है, और प्लोकीडोज डिस्क बोलते हैं इसको. जनरली दिस इज यूज फॉर कॉर्नियल सीन एंड सरफेस, एंड दिस हैज बीन अ क्वेश्चन इन नीट 2016, वेरी लॉन्ग अगो. ठीक है. Fluorescein, Alcyon blue and Bengal rose stain, these are used for corneal staining. Window reflex slit lamp, generally biomicroscopy, and Placido's is again corneal, generally surface, scene and surface, that is Placido's disc. And anesthesiometer, the next one is anesthesiometer. It will be used for generally corneal sensation. ठीक है, corneal sensation के लिए generally use होगा anesthesiometer. ठीक है, anesthesiometer. Nasociliary nerve है ना, swab test आपको याद होगा जनरली, है ना. स्वैब टेस्ट जनरली एक क्या करते हैं हम, विल टेक कॉटन स्वैब, है ना, एक कॉटन स्वैब लेंगे और उसको जनरली लेके जाएंगे कहाँ पे, कॉर्निया पे टच कराएंगे. इफ़ जब कॉर्निया पे टच कराएंगे तो वहाँ पे नेजोसिलियरी नर्व का सप्लाई होता है. एंड इफ इट इज़ ओके, अगर कॉर्नियल सेंसेशन है तो आई क्या करेगा, ब्लिंक करेगा. अगर आई अगर ब्लिंक नहीं कर रहा है वहाँ पे टच कराने पर भी, सो दैट इज गोइंग टू आर योर नेगेटिव, मतलब कॉर्नियल सेंसेशन लॉस्ट हो चुकी है. सो दिस इज जनरली कॉर्नियल थिकनेस. यहाँ पे एक दो चीज़ें और पढ़ो, दैट इज गोनियोस्कोपी. जनरली इट इज यूज फॉर द एंटेरियर चेंबर, इट इज यूज फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ एंटेरियर चेंबर. टोनोग्राफी फॉर द डिटरमाइनिंग द फैसिलिटी ऑफ एक्वस फ्लो. एंड टोनोमेट्री, दो चीज़ें होती है, टोनोग्राफी एंड टोनोमेट्री. टोनोमेट्री इज फॉर जनरली इंट्राऑकुलर प्रेशर, ठीक है, इंट्राऑकुलर प्रेशर और इंट्राऑकुलर टेंशन. एंड टोनोग्राफी इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द फैसिलिटी ऑफ एक्वस फ्लो, जिसको हम सी से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, फैसिलिटी ऑफ एक्वस फ्लो. सो दिस वाज रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैचीमीटर, टोनोमीटर, ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड. ठीक है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द अबव प्रोसीजर एक्सेप्ट. यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, हिज जस्ट आंख के सामने में रख के जनरली क्या किया जा रहा है, इसको एग्जामिन किया जा रहा है. सो दिस इज नथिंग बट द डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी. दिस इज डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज, अपराइट एंड 15x मैग्निफिकेशन विल बी देयर. इट कैन नॉट बी यूज्ड इन हेजी ऑक्युलर मीडिया. फॉर हेजी मीडिया इन डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी इज यूज्ड. लुक, यहाँ पे दो चीज़ें आप याद कर लो. डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में इरेक्ट, वर्चुअल एंड 15 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज होगा. अभी जस्ट हमने क्या किया, वी जस्ट फिनिश्ड आवर दशहरा, है ना, दशहरा हमने फिनिश किया, देवी माँ का पूजा हमने खत्म किया. सो लेट्स मेक अ निमोनिक फ्रॉम दैट ओनली. सो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के लिए यू मस्ट रिमेंबर अ निमोनिक, दैट इज देवी माँ. देवी माँ मतलब डी फॉर डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, ई फॉर इरेक्ट, वी फॉर वर्चुअल इमेज, एंड माँ, एम फॉर जनरली मैग्नीफाइड. एंड मैग्नीफाइड कितना से, 15 टाइम्स है. इन डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, सो दिस विल बी जनरली गिविंग यू एक निमोनिक याद करते हैं कि एमआरआई कितने में होता है, 5000 में, बहुत महंगा है एमआरआई. सो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के लिए हम याद करेंगे एमआरआई इन 5000, दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ जनरली 5 एंड जनरली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म. सो दिस इज रिगार्डिंग द डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी. यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो यही दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं. नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड. इसका आंसर सो क्या हो जाएगा, इट कैन बी यूज्ड इन केसेज ऑफ हेजी ऑक्युलर मीडिया. नो, इट कैन नॉट बी. सो दिस इज जनरली द रॉन्ग आंसर. इट कैन बी डन विद पेशेंट बीइंग इन एनी पोजीशन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट अबव प्रोसीजर. ये ट्रू है. देयर इज नो स्टीरियोप्सिस, ट्रू है. द रेटिनल पेरिफेरी कैन नॉट बी एग्जामिन्ड, ऑफ कोर्स द रेटिनल पेरिफेरी कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय जनरली दिस डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी. ठीक है, आगे चलिए. उसके लिए आपको इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी वगैरह का जनरली यूज करना होगा. व्हिच टेस्ट इज बीइंग डिमॉन्स्ट्रेटेड हियर. सो व्हाट इज द टेस्ट व्हिच इज बीइंग डिमॉन्स्ट्रेटेड हियर. यहाँ पे देखो एक ऐसे यहाँ पे क्या किया हुआ है जनरली, एक पेपर स्ट्रिप लगा दिया गया है आँख में, और पेपर स्ट्रिप हैज़ बीन पुट इनसाइड योर आईज, है ना, और आई लिड आपको क्लोज करने को बोला जा रहा है. सो दिस इज नथिंग बट द स्किमर टेस्ट. लुक, what is this Schirmer test? It is used to measure the total tear secretions used in the test of dry eye disease, xerophthalmia के केसेस में विटामिन ई डेफिशिएंसी, है ना, ए डेफिशिएंसी. इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ 5x35 mm स्ट्रिप ऑफ वाटमैन 41 फिल्टर पेपर. प्रोसीजर कैसे किया जाता है, वाटमैन पेपर इज जनरली
folded 5 mm from one end and place it in the lower fornix at the junction of lateral 1/3 and medial 2/3. This can be asked, ठीक है, junction of lateral 1/3 and medial 2/3. The patient is asked to look up and not to blink or close the eye. After 5 minutes, weighting of filter paper takes place from the bent end, then its reading is measured. Interpretation of Shermer eye test कैसे करते हैं, देखो greater than 15 mm आ रहा है, so this is normal value. 5 to 10 mm means moderate to mild keratoconjunctivitis सिक्का है ना, KCS, and less than 5 mm आ रहा है, so this is generally severe keratoconjunctivitis सिक्का, dry eye, ठीक है। आगे चलिए, नॉट यूज फॉर कॉलर विजन टेस्टिंग, नॉट यूज फॉर कॉलर विजन, यहाँ पे देखो हॉलमग्रेन वूल टेस्ट, ऑफ कोर्स इट इज यूज, इशिहारा चार्ट इज यूज फॉर कॉलर विजन, FM100 ह्यू टेस्ट, इट इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर कॉलर विजन टेस्टिंग, यू मस्ट रिमेंबर दिस। सो ये तीनों यूज होता है, तो कौन सा नहीं होता, एमिस टेस्ट। एमिस टेस्ट इज क्या है, इट इज यूटिलाइज टू डिटरमाइन द म्यूटोजेनिक एक्टिविटी ऑफ द केमिकल बाय ऑब्जर्विंग दे कैन कॉज म्यूटेशन इन टेस्ट बैक्टीरिया और नॉट, माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। आगे देखो, कॉर्नियल इंडोथेलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम, ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड दीज आर नथिंग बट द फैक्चुअल क्वेश्चन दैट यू हैव टू रिमेंबर, देयर इज नो अदर वे। सो लुक, कॉर्नियल इंडोथेलियम के लिए पूछ रहा है, आई विल टेल यू द डिफरेंट जर्म लेयर्स एंड व्हाट दे जनरली are derived from, the structures of the eye and from which germ layers they are derived. So look, from the neuroectoderm, ठीक है, एक निमोनिक याद करते हैं न्यूरोइक्टोडर्म के लिए रोजेज करके, ठीक है, ROSES करके। सो आर फॉर रेटिना, ऑप्टिक नर्व, स्मूथ मसल्स ऑफ आइरिस, एपिथेलियम ऑफ आइरिस एंड सिलियरी मसल्स, नेक्स्ट इज रेटिना एंड सेकेंडरी विट्रस। सो आर फॉर, दो आर याद करना है हमको, रेटिना, ऑप्टिक नर्व है ना जनरली, स्मूथ मसल्स ऑफ आइरिस, एपिथेलियम ऑफ आइरिस एंड सिलियरी मसल, सेकेंडरी विट्रस, दैट विल बी जनरली ड्राइव्ड फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म। मिसोडर्म से क्या बनता है, मिसोडर्म से जनरली स्क्लेरा विल बी देयर, टेम्पोरल स्क्लेरा दैट इज ब्लड वेसल्स, प्राइमरी विट्रस एंड एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स। आगे देखो, न्यूरल क्रेस्ट, सो न्यूरल क्रेस्ट से ट्रेबिक्युलर मेसवर्क, सिलियरी मसल्स, इंडोथेलियम ऑफ कॉर्निया, स्ट्रोमा ऑफ कॉर्निया, स्क्लेरा एक्सेप्ट द टेम्पोरल पार्ट, क्योंकि टेम्पोरल पार्ट जो है स्क्लेरा का दैट इज फ्रॉम द मिसोडर्म। अगर मैं बात करूँ सरफेस इक्टोडर्म की, तो फ्रॉम द सरफेस इक्टोडर्म डेवलप्स द टार्सल प्लेट, एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया, कंजंक्टिवा, लेंस, लैक्रिमल ग्लैंड, ऑल दिस फ्रॉम द सरफेस इक्टोडर्म, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉर्नियल इंडोथेलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम, सो कॉर्नियल इंडोथेलियम विल बी ड्राइव्ड फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है, इंडोथेलियम ऑफ कॉर्निया दैट इज फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट। आगे चलिए, ट्रू अबाउट रेटिनोस्कोपी, सो रेटिनोस्कोपी है क्या, व्हाट इज रेटिनोस्कोपी, रेटिनोस्कोपी इज आल्सो नोन एज स्कायोस्कोपी, ठीक है, स्कायोस्कोपी और शैडो टेस्ट व्हिच इज डन टू चेक द एरर ऑफ रिफ्लेक्शन बाय मेथड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। प्रोसीजर कैसे करते हैं, पेशेंट इज मेड टू सीट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द एग्जामिनर, अ लाइट इज थ्रोन इनटू द पेशेंट्स आई, एग्जामिनर ऑब्जर्व्स एंड रेड रिफ्लेक्स ऑरेंज स्ट्रिक और बैर ऑफ लाइट, नो मूवमेंट है दैट इज मायोपिया -1D, ऑपोजिट मूवमेंट मायोपिया ग्रेटर देन -1D, सेम साइड मूवमेंट दैट इज मायोपिया लेस देन 1 -1, इमेट्रोपिया दैट इज 0 एंड हाइपरमेट्रोपिया इज +1। सो ट्रू अबाउट द रेटिनोस्कोपी क्या होगा, ट्रू अबाउट रेटिनोस्कोपी दैट इज नथिंग बट done from 1 meter distance from the patient, ये सारी चीज़ें। इन hypermetropia the red glow moves in opposite direction, no it is not true। in high myopia the red glow moves in same direction, गलत। in metropia the red glow moves in opposite direction, this is again wrong। so right क्या होगा, done from 1 meter distance from the patient। आगे देखो, a child presents with night blindness, delayed dark adaptation, which investigation to be done further to confirm the diagnosis। so they are telling night blindness and delayed generally dark adaptation, so this is going towards general delayed dark adaptation means there will be deficiency of the rod cell, R for rod, R for rat, rat का जो vision है that is from the rod cells, so occurs due to the disease of rods like vitamin, either it can be vitamin A deficiency or it can be retinitis pigmentosa, so these are our differential diagnosis। so इसके लिए अगर retinitis pigmentosa मान के अगर हम चलते हैं या फिर विटामिन A deficiency, तो इसमें सबसे बेस्ट क्या होगा डायग्नोसिस करने के लिए, बेस्ट विल बी ERG। व्हाट इज ERG, ERG इज नथिंग बट इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था इकोकार्डियोग्राफ पढ़ा था, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम पढ़ा था, एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम। सो बी वेव अफेक्टेड बिफोर ए वेव, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, दिस इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन जनरली रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, एंड देयर यू विल सी बी वेव इज अफेक्टेड बिफोर दे। व्हाट आर दिस ए वेव, बी वेव एंड सी वेव इन दिस ERG, PQRST हमने किया हुआ, डेल्टा अल्फा सब वेव हमने EEG में किया है ना, वेव्स इन ERG पढ़ते हैं, ठीक है, ERG में निगेटिव ए वेव्स, दिस इज जनरली ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, हमने ECG में पढ़ा था ना जनरली, दिस इज P वेव है ना, देन QR है ना, एंड देन यस, एंड उसके बाद जनरली क्या होता है,
देन दिस एस एंड देन दिस टी वेव। सो ऐसे हमने पढ़ा हुआ था। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जैसे ये पी क्यू आर एस होता है, ऐसे यहाँ पे निगेटिव ए वेव इन ई आर जी रिप्रेजेंट्स एक्टिविटी ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, पॉजिटिव बी वेव्स जनरली represents the inner retinal layer activity, whereas the positive C wave is associated with pigmentary epithelium, different layers of retina, you know. So this is going to answer ERG. यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है EOG. You can get confused with ERG and EOG. So what is EOG? EOG is nothing but the electro ऑक्यूलोग्राम, ठीक है, वो इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम था. दिस इज जनरली इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम. और इसमें जनरली हमको क्या समझना होगा? ओके, सो लेट मी, ओके ओके. सो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम EOG. इट मेजर्स द चेंजेस इन द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ आई इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन इल्यूमिनेशन व्हेन द आईज आर मूव्ड फ्रॉम side to side. It indicates activity of pigmentary epithelium and outer segment of the rods and cones. So generally it will indicate the activity of pigmentary epithelium and the outer segment of rods and cones. Therefore any lesion proximal to the photoreceptor rod or cone cells will have a normal generally EOG, that is इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम टेस्ट. यहाँ पे एक चीज याद करना होगा हमको इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम में, दैट इज, और सब चीज भूल जाओ कोई मतलब नहीं, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस आर्डन इंडेक्स. सो दिस आर्डन इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ जनरली लाइट पीक, है ना, ओवर द डार्क ट्रफ इन अ EOG. सो क्रेस्ट और ट्रफ हमने पढ़ा हुआ था ना, ऐसे ऐसे क्रेस्ट ट्रफ करके हमने पढ़ा होता है, ऐसा कुछ आता है वहाँ पे. और वहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है, ग्रेटर देन 185 इज नॉर्मल, 150 टू 185 इज बॉर्डर लाइन, एंड लेस देन 150 इज एबनॉर्मल. आजकल ये क्वेश्चन नहीं पूछते, बट जनरली एम्स वगैरह में पहले ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. जस्ट रिमेंबर दिस आर्डन इंडेक्स EOG में. न्यू बॉर्न इज हाइपरमेट्रोपिक बाय, सो ओके, न्यू बॉर्न इज हाइपरमेट्रोपिक बाय 2 to 2.5 या फिर +2 to +3 जनरली डायोप्टर. ये आपको याद ही होगा. न्यूबॉर्न के रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ. आई एट द बर्थ, लुक, एंटेरोपोस्टेरियर डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज अबाउट 16.5 mm, ठीक है. एडल्ट में कितना होता है? 24. यहाँ पे कितना होता है बर्थ में? एक बेबी में जनरली 16.5 mm, दैट इज 70% ऑफ द एडल्ट साइज. एडल्ट साइज इज अटेंड बाय 7 to 8 years. कॉर्नियल डायमीटर कितना होता है? 10 mm, एंड एडल्ट साइज ऑफ द कॉर्नियल डायमीटर दैट इज 11.7 mm, व्हिच इज अटेंड बाय 2 years of the age. नेक्स्ट, एंटेरियर चैम्बर इज शैलो एंड एंगल इज नैरो एट बर्थ. लेंस इज स्फेरिकल एट बर्थ, है ना. रेटिना जनरली कैसा होता है? अपार्ट फ्रॉम द मैक्यूलर area, the retina is fully differentiated. Macula differentiates 4 to 6 months after birth, and again this has been the question. Myelination of optic nerve fibers has reached the lamina cribrosa. Newborn is usually hypermetropic by +2 to +3 diopter. बहुत बार पूछा गया, एम्स, PGI, नीट, PG, FMG, सारे चीज़ों में पूछा गया. ऑर्बिट इज मोर डाइवर्जेंट, दैट इज 50 डिग्री एज कम्पेयर टू एडल्ट. एडल्ट में 45 डिग्री डाइवर्जेंस होता है, एंड जनरली इन द चाइल्ड इट इज 50 डिग्री डाइवर्जेंस. लैक्रिमल ग्लैंड इज स्टिल अंडर डेवलप्ड एंड टीयर्स आर नॉट सेक्रेटेड इन द चाइल्ड एट द बर्थ. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और देखो, विजुअल एक्टिविटी के बारे में पूछ सकता है. सो न्यू बॉर्न में विजुअल एक्टिविटी 6/240, 1 मंथ में 6/180 to 6/90, 4 to 6 months में जनरली 6/18 to 6/9, एंड 3 years पे जनरली 6/6 जनरली क्या होता है? विजन हो जाता है. सो पोस्ट नेटल पीरियड में लुक, दिस मैक्यूला हमने पहले पढ़ा कि डेवलप्ड बाय 4 to 6 months. फिक्सेशन स्टार्ट्स डेवलपिंग बाय 4 to 6 weeks. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं दैट फिक्सेशन postnatal period में fixation starts developing by 4 to 6 weeks. Critical period for development of fixation reflex is generally 2 to 4 months. You must remember this. Critical period 2 to 4 months, and fixation development is completed by 6 months. Cornea attains normal adult diameter by 2 years of age. Lens grows throughout the life. Of course, this has been the question. Which of the following structure of the eye grows throughout the life? है ना, throughout the 7 ईयर के बाद क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती है, बट लेंस ग्रोज थ्रू आउट द लाइफ. और इसीलिए जनरली क्या होता है कि ओल्ड पीपल में लेंस में क्या हो जाता है? प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज इट स्टेज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. ठीक है, लेंस ग्रोज थ्रू आउट द लाइफ. फुल विजुअल एक्यूटी इज अटेंड बाय 3 years of the age. You must remember this. Structure with highest refractive index. So the structure which has the highest refractive index is nothing but the generally lens. Lens में 1.38 to 1.40 का जनरली होता है. I'll tell you about the lens here. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब करवाऊंगा वहाँ पे आपको बताऊंगा. Which is true about the PHPV. PHPV क्या है? persistent hyperplastic primary vitreous. एंड जनरली सिम्टम इसके क्या होते हैं? ल्यूकोकोरिया, स्ट्रैबिस्मस, निस्टेगमस एंड ब्लड विजन, ब्लाइंडनेस. यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दिया, ये दूसरे टॉपिक में हम करेंगे वहाँ पे. एसोसिएटेड विथ स्मॉल आई रेटाइनल डिटेचमेंट एंड विट्रस हेमरेज. सो यहाँ देखो, इट इज एसोसिएटेड विथ माइक्रोऑप्थेल्मिया, दैट इज नथिंग बट द स्मॉल आई. नेक्स्ट, मैक्सिमम विजुअल फील्ड इज सीन. लुक,
there are like different visual fields. One is temporal visual field, nasal visual field, inferior and superior visual field. So the maximum that is 90 to 100 degree of the visual field is seen in the temporal. ठीक है, inferior कितना होता है 70%, nasal 60% and 60 degree, and superior is 50 degree visual field. Normal intraocular pressure I already told you that is 10 to 21 mmHg. यहाँ पे बेस्ट आंसर 10 to 20. नॉर्मल एक्वस प्रोडक्शन रेट कितना होता है 2 to 3 ml पर मिनट और 2.5 to 3 ml पर डे. नॉर्मल एक्वस आउटफ्लो रेट कितना होता है, दैट इज नथिंग बट द एक्वस आउटफ्लो फैसिलिटी जो हम सी करके पढ़े थे, दैट इज 0.22 मिनट पर एम ऑफ HEG. आगे देखो एक्जियल लेंथ ऑफ ऑर्बिट. सो एक्जियल लेंथ ऑफ ऑर्बिट इज नथिंग बट द 2.4 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे क्लोजेस्ट क्या है 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, नॉट mm में इसको 24 mm कर सकते हैं हम, 2.4 सेंटीमीटर. सो एक्जियल लेंथ इज जनरली 24 mm, दैट इज 2.4 cm. वॉल्यूम ऑफ ऑर्बिट इज 6 ml एंड डेप्थ ऑफ द एंटीरियर चैम्बर इज 3 mm. द जंक्शन बिटवीन द रेटाइना एंड सिलियरी बॉडी, रेटिना और सिलियरी बॉडी के बीच में, ठीक है, रेटिना और सिलियरी बॉडी के बीच में जो जंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज ओरा सेराटा. लुक व्हाट दिस पार्स प्लेना एंड पार्स प्लाइकाटा. सो पार्स प्लेना और पार्स प्लाइकाटा जो है सिलियरी बॉडी का अगर सामने का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें सामने में प्लाइकेशंस, द फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर विल बी देयर. ठीक है, सो उसको हम जनरली क्या होते हैं पार्स प्लाइकेटा, और जस्ट उसके पीछे क्या होता है एक प्लेन स्ट्रक्चर हो जाता है फिर. सो दैट इज कॉल्ड एज जनरली द पार्स प्लेना. दिस टू आर द सिलियरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं ये, एंड दिस ओरा सेराटा इज द जंक्शन बिटवीन द रेटाइना एंड सिलियरी बॉडी. इट इज द पेरिफेरल मार्जिन वेयर द रेटिना एंड्स. ठीक है, यहीं पे रेटिना, द पेरिफेरल मार्जिन वेयर द रेटिना एंड्स इज कॉल्ड एज ओरा सेराटा. ओरा सेराटा यानी कि सेरेसन्स विल बी देयर, सेरेसन्स विल बी देयर. ठीक है, सेरेसन्स विल बी देयर. हंसिया देखा होगा गांव घर में आपने जनरली, है ना, उसमें जो सेरेसन्स होते हैं ना वैसे सेरेसन्स यहाँ पे होंगे. ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूलर मसल्स आर सप्लाइड बाय, वो धान वगैरह काटते हैं ना हंसिया से गाँव में, उसमें ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूलर मसल्स आर सप्लाइड बाय क्रेनियल नर्व 3. सो एक्सेप्ट, सो देखो एक निमोनिक याद कर लो LR6 SO4 O3. सो दिस इज LR6. LR6 जनरली मतलब सिक्स जनरली एब्ड्यूसेंस नर्व, सिक्स से जनरली सुपेरियर ऑब्लिक. ठीक है, सप्लाई लुक लैटरल रेक्टस इज सप्लाइड बाय सिक्स्थ नर्व, सुपेरियर ऑब्लिक इज सप्लाइड बाय फोर्थ नर्व. फोर्थ नर्व इज नथिंग बट द ट्रॉक्लियर नर्व, एंड द O3 that is nothing but rest all by oculomotor, that is nerve 3 oculomotor nerve 3. So look, all of the following ocular muscles are supplied by cranial nerve 3. So cranial nerve 3 सबको करता है. SO4 superior oblique is generally supplied by what? Superior oblique is supplied by fourth, that is nothing but the trochlea. All of the following statement are true about oculomotor nerve except. So oculomotor nerve क्या होता है? Look, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, look, supplies extrinsic ocular, its nucleus is located in lower midbrain, its nucleus is located in upper midbrain, palsy may lead to ptosis. So यहाँ पे देखो lower midbrain और upper midbrain, इसका न्यूक्लियस कहाँ होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन. सो लेट्स सी some cranial nerves, their location of the nucleus and the function. So look, the first is oculomotor, that is third nerve. Third nerve upper midbrain में होता है located इसका nucleus, and its function is extrinsic ocular muscle. It is extrinsic ocular muscle. Trochlear fourth is generally lower midbrain में nucleus होता है, extrinsic ocular muscle movement, and generally abducens, that is sixth, that is पॉन्स में होता है इसका न्यूक्लियस, एंड एक्सट्रिंसिक ऑक्यूलर मसल मूवमेंट. हाइपोग्लोसल इज 12th nerve, and the nucleus is located in the medulla, and the tongue muscle and movement of the tongue muscle is generally governed by hypoglossal, that is 12th nerve. All are glands of eyelids except. So eyelid के gland of this, of course it is the generally gland of eyelid. These are also sebaceous glands which open into the follicles of the eyelashes. Meibomian gland, this is also known as tarsal or modified sebaceous glands, produces oily layer of tear film. Again it is generally present in the eyelid. Lacrimal gland will not be present in the eyelid, so this will be our answer. Glands of mole is generally situated near hair follicles and opens into the duct of जिस. ठीक है, ग्लैंड ऑफ मोल ओपन्स इनटू जिस करके याद रखो, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस. पर्सन इज नॉट एबल टू लुक डाउन, व्हिच एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल इज अफेक्टेड. नीचे नहीं देख पा रहा, तुम नीचे नहीं देख पा, नीचे देखने के लिए क्या होना चाहिए, ये आईलिड क्या होना, बंद नहीं होना चाहिए, खुले रहना चाहिए. सो इसको जनरली इट इज गवर्न्ड बाय सुपेरियर ऑब्लिक. सो व्हिच एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल इज अफेक्टेड, दैट इज सुपेरियर ऑब्लिक. टू मसल्स याद कर लो. देखो अगर नीचे नहीं देख पा रहा तो इन्फेरियर रेक्टस एंड सुपेरियर ऑब्लिक. इन्फेरियर ऑब्लिक इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर लुकिंग अप. ठीक है, द सेकेंडरी अगर यहाँ पे पूछा नॉट एबल टू लुक अप, सो दैट इज इन्फेरियर ऑब्लिक. द सेकेंडरी एक्शंस ऑफ सुपेरियर रेक्टस मसल्स आर एडक्शन एंड इंटॉर्शन. एडक्शन एंड एक्सटॉर्शन इज डन बाय इन्फेरियर रेक्टस. नेक्स्ट इज पर्सन इज नॉट एबल टू लुक डाउन, व्हिच एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, ऑफ कोर्स दैट इज इन्फेरियर रेक्टस. ठीक है,
In lateral rectus palsy of the right side, the face of the patient is turned to which of the following side? Lateral rectus palsy of the right side, the face of the patient will be generally towards the right side. Synergistic muscles of right inferior oblique, that is right superior rectus. ये हम करेंगे अभी दूसरे वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे, बट जस्ट लेट्स डू, यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में दे दिए गए, सो लेट्स खत्म करते हैं इसको. द ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रॉक्लियर नर्व पासेज थ्रू द सुपेरियर और वाइटल फीचर, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस. Maddox rod test. ठीक है, so Maddox rod test is nothing but a series of parallel cylinders which converts a dot light into a source of light perpendicular to the source of light, dissociates the two eyes for near fixation and measures the amount of heterophoria. So this is generally used for strabismus. By pinhole visual acuity is neutralized till. Pinhole कितने तक visual acuity को neutralize कर सकता है? That is 3 diopter. You just take a screenshot here about the pinhole and just remember this till 3 diopter. एक बार देख लो आप. Which component of the eye has maximum refraction? So total power of eye कितना होता है? 60 diopter. Maximum refractive power कितना होता है? Anterior surface of the cornea के पास, that is about 46 to 50 diopter और 45 to generally 50 diopter. इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 44 generally cornea के पास and प्लस जो 16 होता है, दिस इज जनरली टू द लेंस. ठीक है, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? सेंटर ऑफ लेंस, एंड दैट सेंटर ऑफ द लेंस हैज 1.4. ठीक है, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस इज 1.386, posterior surface of lens is 1.386, cornea is 1.376. These are generally the refractive indexes. Power of cornea कितना होता है? Lens generally 16 diopter, cornea 44 diopter, total 60 diopter, so 44 or 45 diopter. Shallow anterior chamber is seen. Look, shallow anterior chamber will be seen in phacomorphic glaucoma. How? Look, deep anterior chamber कहाँ होता है? Young males and myopes में. Shallow anterior chamber women, elderly and children में. ठीक है, यहाँ पे देखो, I'll tell you a little bit more about. एक चीज होता है गोनियोस्कोप. सो गोनियोस्कोप, द एंगल ऑफ एंटेरियर, गोनियोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स द एंगल ऑफ जनरली एंटीरियर चैम्बर एंड कैन बी एग्जामिन्ड विद द हेल्प ऑफ अ गोनियोस्कोप एंड स्लिट लैम्प. कोइपे गोनियो लेंस इज मोस्ट पॉपुलर टाइप. स्कैफर, सीनेज, ये सब जनरल यूज होते हैं. इसमें जनरल क्या समझना होता है हमको कि एंटीरियर चैम्बर जो है दैट इज सैलो इन एट एक्सट्रीम ऑफ एजेज इन क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा, हाई हाइपरमेट्रोपिया में सैलो दिखेगा, एंड एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ लेंस में भी इट विल बी सैलो. इट विल बी डीप, द एंटीरियर चैम्बर विल बी डीप इन हाई मायोपिया, ophthalmos, congenital glaucoma, aphakia and posterior subluxation of the lens. Unequal in depth, the anterior chamber will be of unequal depth in iridocyclitis, shallow at the periphery and deep in the generally center. Anterior generally synechia में भी unequal depth होगा. Surface ectoderm we have already completed. This is lens of eye. Lens develops from surface ectoderm. Outer epithelium of cornea is derived from, outer epithelium of cornea is derived from surface ectoderm. Which of the following has maximum field of vision? Maximum field of vision is with temporal. हमने ऊपर ही किया था, यहाँ पे हमने temporal किया था. That has 90 to 100 degree field of vision. 90 to 100 degree field of vision. Neuroretinal rim is broadest in which area? It is broadest in the inferior area. Which of the following is better diagnosed with distant direct ophthalmoscopy? Distant direct, ठीक है, not only direct but distant direct. So opacity in the refractive media will be better diagnosed there. Macular edema is seen with, ठीक है, macular edema is seen with generally direct ophthalmoscopy. इसको ऐसे याद करो कि distant है ना, distant डायरेक्ट, सो एक डी है ना और 2D, सो दिस इज डन फ्रॉम 2 to 22 सेंटीमीटर, ऐसे करके भी याद कर सकते हो. मैक्यूलर इडिमा इज सीन विथ डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी. लुक, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी पे हम डिस्क एंड मैक्यूला को देख सकते हैं. इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में होल रेटिना, विट्रस, टेस्ट ऑफ चॉइस जनरल इन द रेटिनल डिटैचमेंट, एंड दैट हैज बीन द क्वेश्चन इन डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी. डिस्टेंट एंड डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी फॉर एनी ओपेसिटी, कैटरैक्ट, डिटैचमेंट. रेटिनोस्कोपी फॉर कैलकुलेटिंग द रिफ्रैक्टिव एरर. आगे देखो, हर्क्सबर्ग टेस्ट मेजर्स. सो हर्क्सबर्ग टेस्ट मेजर्स स्ट्रैबिस्मस, ऊपर भी हमने किया हुआ था. muscle first affected in the thyroid ophthalmopathy. So thyroid ophthalmopathy, in thyroid eye ophthalmopathy, the ocular motility defects due to restrictive myopathy in order of frequency are elevation due to fibrosis of inferior rectus, abduction due to fibrosis of medial rectus, depression that is due to the fibrosis of superior rectus, and adduction due to the fibrosis of lateral rectus. So this is muscle first affected, that is nothing but the inferior rectus. ठीक है, inferior rectus जो कि elevation में problem होगा.
true about color blindness. So color blindness is nothing but the X-linked recessive condition. Females carrier होते हैं and males will be affected. So males are more prone to color blindness. That much that you must remember. इतना अगर आप करते हो तो आपका first जो है that will be done, and then in the next topic we'll do cornea, conjunctiva and sclera, and there are good questions being formed from this topic, cornea, conjunctiva and sclera. So we'll do it in the next topic. इसको जनरली कॉर्निया, स्क्लेरा ये सब को जनरली क्या कर देना चाहिए था कि एनाटॉमी में कवर करवा देना चाहिए था, बट the book has arranged it in this manner only, so we'll do it in this manner only. This much for today. I'll try to meet you in the next video with the next topic, that is cornea, conjunctiva and sclera. Thank you so much.